Hello students, we are going to do rotational motion lecture number 3 today of JEE. We are going to discuss some synopsis and after that we are going to discuss the introduction exercise of DC Pandey. आज का टॉपिक रहेगा रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस. सो हम पढ़ सकते हैं देयर इज अ रिजिड बॉडी व्हिच इज रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस. ऐसे घूम रही है. Can I say अगर ये बॉडी गोल गोल घूमेगा about this axis, so all particles of this body are going to perform circular motion. Maybe it may be a uniform circular motion if it is going with omega. अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो ये जितने भी पार्टिकल्स है यहाँ पर they will all going to rotate in uniform circular motion. बट अगर इसके पास ओमेगा नहीं होके अल्फा है, alpha means angular acceleration, means rate of change of angular velocity. So can I say angular velocity is going to change at every instant. So this motion of this particle will not become uniform circular motion but become non-uniform circular motion. तो हमको जब याद रखना है, हमको याद रखना है कि ओमेगा जब रहेगा तो it will become uniform motion. करेक्ट है? सिर्फ ओमेगा रहेगा. and अल्फा रहेगा means what? It is uniform angular acceleration. and सिर्फ ओमेगा रहेगा तो यूनिफॉर्म एंगुलर velocity. So along this line we are going to discuss. We know all these terms and definitions. I'll just discuss over here. ओमेगा का फॉर्मूला हमको पता था. It is rate of change of angular displacement. Okay, and the unit will be radian per second. अल्फा कब आएगा? It is rate of change of angular velocity in non-uniform motion, or I can say uniform accelerated motion, which is being written as d2 theta upon dt square. अच्छा, अल्फा को प्रोवाइड कौन करेगा? अल्फा को प्रोवाइड टॉर्क करेगा. अच्छा, टॉर्क का और एक फॉर्मूला अगर आपको याद है, समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. याद है ना भाई? ये हम कर चुके हैं. तो अल्फा को बनाने वाला टॉर्क है. और टॉर्क कब लगेगा? when there is a force and there is multiplied by the perpendicular distance. ये हम डिस्कशन लास्ट टाइम कर चुके हैं, बट दिस इज गोइंग टू कम टुडे आल्सो बिकॉज हमको अल्फा की जरूरत है, और अल्फा की जरूरत है मींस इनडायरेक्टली वी रिक्वायर टॉर्क आल्सो. अच्छा सर. अच्छा, आई नो अल्फा इज कांस्टेंट. याद है काइनेमैटिक्स में इफ ए वुड बी कांस्टेंट आई वुड यूज v is u plus at, s is ut plus half at square, v square is equal to u square plus 2as. यहां पर अगर अल्फा कांस्टेंट रहेगा बिकॉज दिस इज अबाउट एंगुलर मोशन, then we'll use kinematic equations in rotational motion, that is omega 2 is omega 1 plus alpha t, theta is omega 1 t plus half alpha t square, and omega 2 square is omega 1 square plus 2 alpha theta. What is omega 2? Final angular velocity, initial angular velocity, angular acceleration, time, angular displacement. ठीक है ना बेटा? अच्छा, अगर अल्फा 0 रहेगा means it is going with uniform motion, तो omega 2 will become equal to omega 1 and theta will become equal to omega 1 t. और इसी का काइनेमैटिक्स में हम एक फॉर्मूला लगाते थे, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, बिकॉज ए वाज 0. अच्छा, इफ यू रिमेंबर अल्फा इज वेरिएबल, उधर ए वाज वेरिएबल, तो वी वुड गो इन कैलकुलस, इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव. भाई याद है आपको? ओके. तो अगर हमको थीटा मांगता है तो थीटा विल बी डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद थीटा दिया हुआ है, एंड ओमेगा मांगता है तो विल बी डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अल्फा अगर मांगता है तो it will become derivative of omega with respect to time, which could also be written as omega d omega by d theta. इसका replication if I do it in kinematics, if you remember what was velocity beta, ds by dt. What was acceleration beta, dv by dt, which could also be written as v dv by ds. I hope ये तो सबका पक्का हो गया रहेगा. This is in which motion beta? This is in linear motion. We are comparing this with angular motion. हाँ भाई, तो हमने आपको याद है पढ़ाया था v2a s2v v2a क्या करना है? डेरिवेटिव. एंड अगर उल्टा जाना है तो a2v एंड v2, तो यहां पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको. सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ
एंगुलर मोशन, एस की जगह आ जाएगा थीटा, थीटा वी की जगह आ जाएगा ओमेगा, ए की जगह आ जाएगा अल्फा। तो अगर थीटा टू ओमेगा डेरिवेटिव, ओमेगा टू अल्फा डेरिवेटिव, और अगर उल्टा जाना है तो क्या करना है बच्चा, इंटीग्रेशन। यस और नो सर? तो हमने यहां पे देखा ओमेगा, इफ अल्फा इज वेरिएबल, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा dt, and integration of d omega will become integration of alpha dt. याद रखना, ये आगे काम लगेगा। What was the replication of this in linear motion? अगर हम देखने जाएंगे इसका replication in linear motion, d theta की जगह आ जाएगा ds, if you remember is v dt, integration of that, yes or no? Another कैसे लिखेंगे, integration of dv will become equal to integration of a dt। भाई याद है ना आपको? तो प्लीज रिवाइज दिस विथ लीनियर मोशन सो दैट यू कैन गेट द आंसर्स। आई विल जस्ट टेल यू क्या हो रहा था। ओके, एस की जगह किसने ले लिया, थीटा ने, वी की जगह किसने ले लिया, ओमेगा ने, ए की जगह किसने ले लिया, अल्फा ने, फोर्स की जगह किसने ले लिया, टॉर्क ने। यस और नो? लीनियर मोमेंटम की जगह किसने ले लिया, एंगुलर मोमेंटम ने। So these terms you should remember so that you will get the answer. अच्छा, one more thing we know that mass की जगह किसने ले लिया, moment of inertia ने। Kinetic energy of a rotating body का फॉर्मूला क्या है, एक बॉडी अगर घूम रही है तो what will be the kinetic energy of a rotating body, half I omega square। You know we can compare this with half mv square। m की जगह ले लिया I ने, p की जगह ले लिया ओमेगा ने। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लीनियर बॉडी वाज p स्क्वायर बाय 2m, इफ यू रिमेंबर, p स्क्वायर बाय 2m, p की जगह ले लिया l ने, m की जगह ले लिया I ने। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी कैन आल्सो बी रिटन एज l स्क्वायर बाय 2I। और इफ आई वांट टू प्रूव इट, कैन आई राइट दिस एज हाफ I स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय I। देखो, आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय I, व्हाट इज I ओमेगा l, सो इट विल बिकम l स्क्वायर बाय 2I। सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। Okay, beta. Now we are going to discuss some extra points. Suppose there are two rigid bodies. One is rotating with a uniform angular velocity omega. Suppose एक fan घूम रहा है with constant angular speed. तो can I say every particle on this body is performing circular motion? Sir, which circular motion? Uniform की non-uniform? आप देख सकते हो यहाँ पर इसके पास सिर्फ ओमेगा है, अल्फा नहीं है। मतलब this circular motion which it is performing is a UCM, and uniform circular motion के पास there is one acceleration called as centripetal acceleration which is always there. There is no tangential acceleration over here. Tangential acceleration का फॉर्मूला आपको सर्कुलर मोशन में पढ़ा था, that is r alpha, but since यहाँ पे alpha 0 है, so at will also become 0, so the resultant acceleration at every instant of time will be r omega square which is radially inwards। आपको पता है centripetal acceleration is always radially inward। yes or no sir? अच्छा, मैं अगर बात करूं इस पॉइंट की, तो ये पॉइंट भी सर्कल में घूम रहा है। देखो, ये पूरा सब चीज सर्कल में घूम रही है, तो ये पॉइंट भी सर्कल में घूम रहा है, बराबर है। आप देख सकते हैं इसका भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहेगा r ओमेगा स्क्वायर, बट क्या दोनों का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेम रहेगा? नहीं, इसका रहेगा r1 ओमेगा स्क्वायर और इसका रहेगा बेटा r2 ओमेगा स्क्वायर। यस और नो सर? ओमेगा दोनों का कांस्टेंट है, बट सिंस r2 इज ग्रेटर देन r1, okay, centripetal acceleration of the second particle is greater than centripetal acceleration of the first particle। बोलिए, ये दोनों सर्किल में जा रहा है, यूनिफॉर्म सर्किल में जा रहा है, बट इसका एक्सेलरेशन कमजोर है, इसका एक्सेलरेशन स्ट्रॉन्ग है बिकॉज इसका रेडियस स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इज ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा इज कांस्टेंट, सो कैन आई से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू आर। अच्छा, और एक बात, दोनों के पास वेलोसिटी है। सर्कुलर मोशन का वेलोसिटी क्या होता है बच्चा? आर ओमेगा। कैन आई से ओमेगा कांस्टेंट है यहां पर, तो v विल बी प्रोपोर्शनल टू r। किसका r बड़ा? जिसका r बड़ा उसका v बड़ा। सो वेलोसिटी ऑफ द सेकंड पार्टिकल एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम विल बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल। ये सब कॉन्सेप्ट्स हमको याद रखने हैं बिकॉज दे आर गोइंग टू बी आस्क्ड इन द न्यूमेरिकल्स। तो हमने पढ़ लिया, अगर एक बॉडी ओमेगा से घूम रही है, यूनिफॉर्म मोशन में घूम रही है,
So every particle on this body except the axis will be moving in uniform circular motion. And it will have centripetal acceleration towards the center whose formula is r omega square. Can I say जिसका r बड़ा उसका ACP बड़ा, जिसका r बड़ा उसका v बड़ा, and v का फॉर्मूला क्या रहेगा? v is equal to r omega, and velocity का डायरेक्शन क्या रहेगा? It is tangential. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या रहेगा? रेडियली इनवर्ड्स. अच्छा, एक और एक बॉडी की तरफ आता है which is going with alpha. Alpha means it is accelerating. Accelerating means angular velocity is changing at every instant of time. तो हमको मालूम है अगर एक पार्टिकल हम यहां पर पकड़ते हैं, it is going to go in a circle. It is going to move in a circle. But this circle is UCM or non-UCM? बेटा, is non-UCM. और हमको मालूम है नॉन यूसीएम के पास दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक होता है एसीपी टुवर्ड्स द सेंटर और एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन व्हिच इज टेंजेंशियल. So ACP is r omega square and AT will become equal to r alpha. What is r omega? What is omega? Omega is the angular velocity at that instant of time. Okay, can I say it is omega at omega t? बोल सकते हैं क्या नहीं? Okay, this is omega at any instant of time because omega हर instant पर change हो रहा है. And what is omega t का formula? अगर आप omega t का formula निकालना चाहते हैं तो it is omega t will be omega 1 plus alpha t, omega initial plus alpha t. Yes or no sir? ये omega t यहां पर लिखा जाएगा. And net acceleration क्या हो जाएगा? It will be under root of ACP square plus AT square at any instant of time. देखिए ये r alpha तो constant है because alpha constant है, but omega at every instant is going to change. तो यहाँ पर omega की जगह omega t आ जाएगा and omega t का formula will become omega initial plus alpha t, which will be substituted over here. Yes or no? अच्छा, what about velocity of this particle? Can I say velocity of the particle is r omega? But हर omega हर instant पर change हो रहा है. तो actual formula for velocity, instantaneous velocity will become r omega at any instant of time. को लिख सकते हैं omega initial plus alpha t. This will be the actual formula for velocity, which is instantaneous, which is going to change at every instant of time because it is non-uniform circular motion. I hope everyone is understanding. थोड़ा complicated है, but आप लोग पेज नंबर 111 पे रेफर करो DC पांडे के, so you will get the things. It is mentioned in extra point. Now we are going to start with sums based on these concepts. Introductory exercise 12.4. कुछ अच्छे वाले sums है. There are total 11 sums inside the introduction. I'll be doing some questions, and then we'll be doing one more introductory exercise. Question number 1 क्या कह रहा है? Question 1. A wheel is rotating with uniform angular acceleration covers 50 revolutions. अच्छा बेटा, एक revolution में कितना cover होता है? 2 पाई. तो number of revolutions अगर 50 revolutions है, तो how much is the theta covered? 2 पाई एक का into n होगा ना, कितना हो जाएगा? 100 पाई रेडियंस. एक रेवोल्यूशन में 2 पाई, तो 50 रेवोल्यूशन में 100 पाई इन द फर्स्ट 5 सेकेंड्स. तो कितना टाइम लगा? 100 पाई कवर करने के लिए 5 सेकेंड लगा उसको. आफ्टर द स्टार्ट मतलब यू आर अज्यूमिंग दैट इनिशियल वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इज 0 रेडियन पर सेकेंड. इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब क्या निकालना है? अल्फा निकालना है. एंड द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फाइनल या ओमेगा 2 at a time of 5 seconds, at the end of 5 seconds. ठीक है सर. हम लोग एक काम करते हैं, we are going to use kinematical equations. Can I say omega 2 is omega 1 plus alpha t? पर ये इक्वेशन हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं. क्यों सर? अल्फा ही पता नहीं है हमको. Any other equation can I use? Can I use theta is equal to omega 1 t plus half alpha t square? Theta is 100 pi, omega 1 is 0. half alpha पता नहीं है, t square, t will become 5 square, that is 25 4s are 100. तो ये हो जाएगा alpha will become equal to 8 pi radian per second square. Everyone understanding this thing? ये alpha मिल गया हमको. अब एक बार alpha मिल गया, can I use omega 2 is omega 1 plus alpha t? बोलिए. So omega 2
ओमेगा 1 0, अल्फा कितना 8 पाई, टाइम कितना बेटा 5, तो ये कितना हो गया ओमेगा 2 40 पाई रेडियन पर सेकेंड. आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 12.4. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 आप ट्राई कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं हम लोग. A flywheel has moment of inertia 5 kg meter square, rotated at the speed of 10 radian per second. Because of friction, it comes to rest in 10 seconds. मतलब ये ओमेगा इनिशियल है, ओमेगा फाइनल कितना हो गया 0 हो गया, फ्रिक्शन के कारण रुक गया वो. Find the average torque due to the friction. कह रहे जो टॉर्क फ्रिक्शन ने प्रोवाइड किया वो कितना था. अच्छा हमको डेटा देखने से पता चलता है टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा. टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा. अल्फा को लिख सकते हैं बेटा ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टी. यू नो ऑल दीज थिंग्स. व्हाट इज आई 5, ओमेगा फाइनल इज गिवन एज 0 minus 10 upon t is also 10, तो ये 10 तो this will become -5 Newton meter. That means it is not an accelerated torque, it is a retarding torque. और रुकने वाला टॉर्क है ना, फ्रिक्शन हमेशा उल्टा टॉर्क प्रोवाइड करेगा. I hope you all have understood this thing also. अब हम लोग जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ. A wheel starting from rest, ओमेगा इनिशियल 0 है इसका. यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन इज 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. बराबर. फॉर अ टाइम ऑफ 10 seconds. Because of friction, question number 4. A wheel starting from rest uniform accelerated 4 radian per second square for 10 seconds. It is allowed to rotate uniformly for 10 seconds. And then finally brought to rest in the next 10 seconds. Find the total angle rotated. अब I'll do one thing. इसको हम लोग ग्राफ के जरिए पढ़ते हैं. ओके देखो क्या हुआ. I'll make graph of ओमेगा टी 10 सेकेंड 10 सेकेंड 10 सेकेंड. तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा. यस और नो. कह रहा है इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड फॉर 10 सेकेंड्स. तो ऐसे जाएगा. बराबर है बोलो. बिकॉज ये स्लोप अल्फा होता है ना, डी ओमेगा बाई डी टी अल्फा. बराबर. देन इट इज गोइंग यूनिफॉर्मली फॉर नेक्स्ट 10 seconds. Then it is brought to rest in the next 10 seconds. बराबर है, समझ में आ रहा है आपको. तो ये कुछ ग्राफ ऐसे कुछ बना. यस आपको समझ में आ रहा है. आई थिंक सो. अच्छा कैन एनीवन टेल मी इधर का ओमेगा कितना हो जाएगा. ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, अल्फा टी. ओमेगा इज व्हाट, ओमेगा 2 इज व्हाट, ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी ना बच्चा. ओमेगा इनिशियल 0, अल्फा कितना है 4 है, टी कितना है 10 है. तो ये हो जाएगा 40 रेडियन पर सेकेंड. कैन आई से ये 40 रेडियन पर सेकेंड आ गया. सो क्या हुआ, 10 सेकेंड में 0 से 40 बढ़ा. फिर नेक्स्ट 10 सेकेंड तक 40 कांस्टेंट है. फिर नेक्स्ट 10 सेकेंड में 40 नीचे उतर के आ रहा है रेस्ट पर. आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग. अच्छा सर. अच्छा एक फॉर्मूला हमको याद है कि डी थीटा इज ओमेगा डी टी. इंटीग्रेशन मतलब थीटा विल बी इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा डी टी. सो थीटा विल बी एरिया अंडर ओमेगा टी ग्राफ. जैसे हम काइनेमैटिक्स में करते थे, याद है, डिस्प्लेसमेंट इज एरिया अंडर वी टी ग्राफ. बोलिए. सो इफ यू कंपेयर दिस, तो इसका एरिया निकालना है. दिस एरिया विल बी ट्रापीजियम का एरिया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. तो हाइट कितना, हाइट तो 40 है.
into sum of parallel sides. ये parallel side is 30 plus ये side is 10, ये हो जाएगा 20, 40, 800 क्या रेडियन, because area will give you theta ना, and theta is always expressed in radian. तो I hope you all have understood this sum. अगर आपको नॉर्मल मेथड से करना है तो आप नॉर्मल इक्वेशन लगाइए, आपको आंसर मिल जाएगा. बट दिस इज द बेस्ट मेथड आई हैड टॉट यू इन काइनेमैटिक्स आल्सो. क्वेश्चन नंबर 5. A wheel of mass 10 kg, radius 0.2 meter, is rotated with an angular frequency or angular speed of 100 rpm divided by 60. कितना हो गया? 5/3 rps. When the motion is turned off, okay, when the motion is turned off मतलब हमने बंद कर दिया, तो ये इनिशियल है, तो इसके कारण मुझे ओमेगा इनिशियल मिलेगा, तो बिकम 2 पाई n इनिशियल, दैट इज 2 पाई, तो ये हो जाएगा 10 पाई/3 रेडियन पर सेकेंड. एंड ओमेगा फाइनल कितना बनाना है बेटा? 0 रेडियन पर सेकेंड, बिकॉज इट इज टर्न्ड ऑफ. अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कैलकुलेट द फोर्स दैट मस्ट बी एक्सर्टेड टेंजेंशियली. Okay, to bring it to rest in 10 revolutions. कितने revolutions होते हैं? चक्कर काटा 10 revolution. Can I say एक revolution में 2 पाई, so 10 revolutions में 2 पाई into 10, that is 20 पाई रेडियन एंगल उसने काट कर वो रेस्ट पर आ गया. बोलो, getting it? Find that, क्या फाइंड करना है हमको? Okay, assume the wheel to be a disc, calculate the force. तो एक्चुअली देखो क्या हो रहा था. एक व्हील है जो डिस्क के फॉर्म में, स्टार्ट में हमने उसको घुमाया ओमेगा इनिशियल से, घूम रहे हैं 10 पाई/3 ऐसे 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 ऐसे. अब मैंने क्या किया? अब मैंने यहां पर एक ऐसे फोर्स लगाया, टेंजेंशियल फोर्स उल्टे डायरेक्शन में, विच इज गोना प्रोवाइड अ टॉर्क इन दिस डायरेक्शन. तो आपने सब कुछ ऐसे हाथ रख दिया, तो फ्रिक्शन के कारण ओके ये ओमेगा इनिशियल जो है वो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और 20 पाई एंगल कवर करने के बाद में वो रुक जाएगा. हमको फाइंड करना है हाउ मच इज द टेंजेंशियल फोर्स व्हिच इज प्रोवाइडिंग अ रिटार्डिंग टॉर्क. तो यहां पर टॉर्क का क्वेश्चन है, तो टॉर्क का फॉर्मूला हमको पता है, इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस व्हिच इज आल्सो इक्वल टू बच्चा आई अल्फा. और फोर्स तो हमको निकालना है, फोर्स का नाम ft है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज योर रेडियस I, since it is a disk, ये हो जाएगा mr²/2 इंटू अल्फा. अल्फा को लिख सकते हैं बेटा ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाई टी. ठीक है ना? तो ft, अच्छा ये r और ये r वैसे ही कट गया, ft will become equal to m 10 r 0.2/2 ओमेगा फाइनल कितना है? 0 माइनस 10 पाई/3 अपॉन कितना बेटा? ओके, यहां पर हमको t नहीं पता है. ओके, सो t हमको पहले ढूंढना पड़ेगा. आई ऑल अंडरस्टैंडिंग है? t हमको पता नहीं है. देखो, तो t हमको पता नहीं है, तो दो अननोन आ गए, तो हम फाइंड नहीं कर सकते हैं. कैन आई यूज काइनेमैटिकल इक्वेशन? कैन आई यूज थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 1t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर, और सॉरी ओमेगा 2 स्क्वायर is equal to omega 1 square. फिर से करते हैं क्वेश्चन. So we'll see the question that the mass is 10 kg, radius is 0.2 meter, initial frequency is 100/60, 5/3 radian per second, omega initial is 10 pi/3, omega final is 0 radian per second. I want to find the tangential force when theta is given. Okay, एक काम करते हैं, पहले इक्वेशन लगाते हैं. ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा. बोलिए, ओमेगा 2 स्क्वायर इज ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज 0, ओमेगा 1 स्क्वायर इज इसका स्क्वायर विल बिकम 100 पाई/3 9. यस और नो? 2 अल्फा थीटा कितना है? 20 पाई. ये कितना हो जाएगा? -100 पाई/9 इज इक्वल टू 40 पाई अल्फा. ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया. ये कितना हो गया बेटा?
minus 10 by 9 4s are 36 pi. This is alpha. बोलिए yes or no. अब हम लोग एक वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. ओके, टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस व्हिच इज I इनटू अल्फा. फोर्स इज टेंजेंशियल फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज बचा r, I is mr square by 2 इनटू अल्फा. यहाँ पे डायरेक्टली मिल चुका है आपको. सो ft, अच्छा ये r और r कैंसिल हो गया. ft विल बिकम इक्वल टू m. m कितना 10, r कितना 0.2 by 2 into alpha. Alpha will become minus 10 pi by 36. Yes or no sir? अब देख सकते हैं ये कितना हो गया 0.1, ये 0.1 into 10 ये 1 हो गया. So what is ft का value? Minus, obviously it will come minus because it is a retarding force. Minus 10 pi, pi is 3.14. So ये हो जाएगा 31.4 by 36. इसको सॉल्व करके आपको आंसर न्यूटन में आ जाएगा with a minus sign indicating that it is a retarding force. Did you understand what's happening? Okay. Question number 6. A solid body rotates about a stationary axis with theta given as 60 minus 2t cube. Find the mean value of angular velocity and angular acceleration average over the time interval t0 to complete stop. I want to find mean value of angular velocity and mean value of angular acceleration from time 0 to time when it stops. अच्छा सर, तो हम लोग थोड़ा यहाँ पर डिस्कशन करेंगे. एवरीवन जस्ट पे अटेंशन. कैन आई फाइंड, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा? ओमेगा. ओमेगा इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 माइनस कितना होता है बेटा? 3t स्क्वायर. तो 3 6t स्क्वायर. इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ओमेगा अल्फा मिलेगा. अल्फा विल बिकम माइनस 12t. तो ये तो आपको आना चाहिए. अच्छा कह रहे हैं when the body will stop. When the body will stop, omega will become equal to 0. So can I say when it stops, omega is 0. मतलब 6 minus 6t square is equal to 0. So t कितना हो गया बेटा? ये 6 और 6, तो t का वैल्यू 1 सेकेंड आ गया. मतलब indirectly can I say when the body stops, how much is the time? 1 second. So I want to find the average value of omega and the average value of alpha when time from time 0 to time 1 second. ये हमको पता होना चाहिए, बेसिक आपको आता ही है. अच्छा, जब भी एक सपोज एक yt फंक्शन है, इसका एवरेज वैल्यू निकालना है, तो एवरेज वैल्यू को ऐसे लिखते हैं. एवरेज वैल्यू ऑफ yt फंक्शन विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ yt dt. ओके, from t1 to t2 upon integration of dt from t1 to t2. ये उसका मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू का फॉर्मेट है. ओके, मीन वैल्यू का फॉर्मेट क्या रहेगा? इंटीग्रेशन ऑफ y dt from t1 to t2 to integration of dt from t1 to t2. ओके, जैसे हम लोग याद है काइनेमैटिक्स में लिखते थे एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ v dt. या एरिया अंडर द ग्राफ ऐसे ही तो लिखते थे अपॉन टोटल टाइम. याद आ रहा है कुछ? सो दिस इज हाउ द फॉर्मेट इज देयर. अब हम शुरू करते हैं. सबसे पहले इसको निकालते हैं, हम लोग देखते हैं. ओके, एवरेज वैल्यू ऑफ ओमेगा विल बी इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम t1 to t2. t1 is 0 to 1 second and this is also 0 to 1 second. बोलिए भाई. अच्छा सर, ओमेगा का फंक्शन क्या है? ओमेगा का फंक्शन तो हमको मालूम है 6 minus 6t स्क्वायर. इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, तो इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा? 6t minus 6t cube by 3. एवरीवन इज गेटिंग इट. ऊपर वाला इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt is t and t हो जाएगा and 1 minus 0 will become 1. Is everyone understanding what's happening? और यहां पर अगर हम वैल्यूज डाल देंगे तो ये हो जाएगा 6 minus क्या भाई? 6 by 3. 0 डालेंगे तो 0 ही आएगा ना. ये तो 1 वैल्यू डालना है, अपर लिमिट. तो दिस विल बिकम 2. सो दिस विल बिकम 4 क्या भाई? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज द मीन वैल्यू ऑफ ओमेगा फ्रॉम 0 to 1 second.
Is everyone understanding what's happening? Similarly, I will find the average value of what, beta? Alpha. Okay? From 0 to 1 second. तो average value of alpha कैसे निकालना है? Average value of alpha will become वही integration of alpha dt from 0 to 1 upon integration of dt from 0 to 1. अल्फा ये है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा -12t²/2 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt इज 1 ओनली एंड दिस इज इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 to 1, तो ये हो जाएगा 2 6 और 6 इसमें 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा -6 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. This is average value of alpha over the time interval 0 to 1 second. Did you understand what's happening? Second, the angular velocity, the angular acceleration, ये तो ठीक है. अब B पार्ट क्या कह रहा है? B पार्ट कह रहा है अल्फा निकालना है when it stops. अच्छा, when the body stops, how much is t? 1 second. और इस मोमेंट पर अल्फा निकालना है. अल्फा का इक्वेशन क्या है? -12t. और t का वैल्यू कितना डालना है? 1. तो अल्फा will become -12 रेडियन पर second square. So when t is equal to 1 second, alpha का value is -12 radian per second square. Did you understand this question? ये हो गया 6th question. Starting with the 7th question. A body is rotating initially with 20 radian per second, provided by a constant torque. By providing it at deceleration of alpha will become -2 radian per second square. Deceleration. At what time will the body will have same kinetic energy as initial if the torque continues to act? देखो actually हो रहा क्या है? एक डिस्क है जो ऐसे घूम रही है, बट अल्फा ऐसे है, बराबर है. अच्छा, कोई बता सकता है ये अल्फा क्या करेगा? ये अल्फा इस ओमेगा को कम करेगा, कम करेगा, कम करेगा और फाइनली कितना बना देगा? 0. फिर क्या होगा? फिर ये अल्फा इस डिस्क को ऐसे घुमाएगा, अपनी डायरेक्शन में घुमाएगा. ओके, क्या होगा? फाइनली ये डिस्क रुक जाएगी और ये जो अल्फा एक्ट कर रहा है वो अल्फा ऐसे घुमाना इसको चालू कर देगा. बराबर है? फिर से सीखो. ओमेगा वाज 20 दिस वे, बट अल्फा इज उल्टा. हर सेकंड में 2 कम करेगा ना. देखो कह रहा है इसे 10 सेकंड बाद ये 0 बना देगा. हर सेकंड में 2 कम हो रहा है, 20 रेडियन पर सेकंड है, तो 10 सेकंड में ये 0 हो जाएगा. बोलते हैं. सो दिस इज इनिशियली 20 रेडियन पर सेकंड. अल्फा इज -2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. दैट मीन्स आफ्टर 10 seconds body will stop instantaneously. फिर क्या होगा? फिर वो उल्टा घूमने लगेगा. ये अल्फा बोलेगा चलो अभी मेरे डायरेक्शन में घूम जाओ. कैन आई से आफ्टर 20 seconds body will have ओमेगा 20 रेडियन पर सेकेंड. 10 सेकेंड बाद उसने रोका और 10 सेकेंड मतलब 20 सेकेंड हो गया ना स्टार्ट से. बॉडी विल हैव ओमेगा 20 रेडियन पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन. कैन आई से एट दिस मोमेंट बॉडी विल हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी एज दैट इनिशियल, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला क्या है बच्चा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. तो ओमेगा चाहे पॉजिटिव हो या ओमेगा चाहे नेगेटिव हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू विल बी द सेम. तो क्वेश्चन में वही तो पूछा है कि कितने सेकंड बाद काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा. काइनेटिक एनर्जी सेम होने का मतलब ओमेगा सेम हो जाना चाहिए. वी आर इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन बिकॉज़ यहां पे स्क्वायर है. तो कैन आई से आफ्टर 20 सेकंड बॉडी विल हैव ओमेगा 20 रेडियन पर सेकंड in the anti-clockwise sense, but the kinetic energy of this body and this body, okay, will be the same after how many seconds? 20 seconds. So can I say kinetic energy rotation at 0th second is equal to kinetic energy rotation at 20th second? तो 20 सेकेंड बाद वो फिर से वही काइनेटिक एनर्जी पकड़ेगा एंड देन दिस इज द आंसर. 10th क्वेश्चन. आप लोग होमवर्क करना इज इंपॉर्टेंट. सॉल्यूशन दिया हुआ है एट द बैक आल्सो दे हैव गिवन यू द सॉल्यूशंस. ठीक है बेटा.
a shaft turning at 65 रेडियन पर सेकेंड एट टाइम 0, मतलब इसका ओमेगा इनिशियल कितना है 65 रेडियन पर सेकेंड एट टाइम 0. Thereafter it gives an angular acceleration alpha of minus 10 minus 5t रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. बोलो yes or no. Okay, find the angular speed at 3 seconds. So ओमेगा निकालना है कितना सेकंड पर 3 सेकंड पर, ये पहला क्वेश्चन है. Okay, how much angle does it turn in, वो हम लोग बाद में देखते हैं. Okay, alpha is constant or variable, दिख रहा है, it is variable, it is a function of time, मतलब यहाँ पर कैलकुलस का सम है और हमको ओमेगा निकालना है. आपको पता है डी ओमेगा इज अल्फा डी टी, इंटीग्रेशन फ्रॉम t1 to t2. t1 is 0 at second, t2 is 3 seconds, 0 second, 3 second. Yes or no? This will be omega 1 and this will be omega 2 या omega final. तो इसको लिख सकते हैं d omega का omega will become omega final minus omega initial. अल्फा की जगह अल्फा का इक्वेशन इज minus 10 minus 5t dt from 0 to 3. तो यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे ओमेगा फाइनल, ओमेगा इनिशियल 65 माइनस साइन बाहर 10t, तो ये हो जाएगा 10t प्लस 5t स्क्वायर बाई 2 0 to 3. तो ओमेगा फाइनल दैट इज ओमेगा एट थर्ड सेकेंड विल बिकम 65. ये हो जाएगा, एक काम करते हैं माइनस 65 इधर ही रखता है, विल बिकम माइनस 10 3 ज़ा 30 प्लस 5 9 ज़ा 45 बाई 2 45 बाय 2 हो गया. आई ऑल अंडरस्टैंडिंग. तो ये हो जाएगा ओमेगा 3 सेकेंड्स माइनस 65 विल बिकम माइनस 60 प्लस 45 105 बाई 2. सो ओमेगा थर्ड सेकेंड विल बिकम 65 माइनस 105 बाई 2. ये आप लोग निकाल सकते हैं, दैट इज रेडियन पर सेकेंड. आई ऑल अंडरस्टैंडिंग. तो ये आपको फंक्शन मिल गया, बट एक्चुअल फंक्शन ये नहीं है. एक्चुअल फंक्शन इन टर्म्स ऑफ टाइम ये है, या तो ये एक्चुअल फंक्शन है. मींस इफ आई राइट ओमेगा फाइनल का फंक्शन इन टर्म्स ऑफ टी विल बिकम 65. ओके, माइनस वैल्यू डालने के पहले. ओके, यस और नो, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ये हो जाएगा माइनस 10t माइनस 5t स्क्वायर बाई 2. ये उसका टाइम का फंक्शन है ओमेगा का. सो ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. बट अगर हमने t का वैल्यू 3 डाल दिया इसमें तो आपको कुछ वैल्यू आ जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. तो यू अंडरस्टूड दिस थिंग. अब क्या पूछा है, अब सेकंड पार्ट भी पूछा है, हाउ मच एंगल डज इट टर्न इन 3 सेकंड्स. तो हमको एंगल निकालना है. अब एंगल के लिए हमको थीटा चाहिए, तो कैन आई से डी थीटा विल बिकम ओमेगा dt. This is from theta 1 to theta 2 and this will be 0 to 3 seconds. तो ये हो जाएगा d theta will become theta and theta 1 is 0, so ये हो जाएगा theta 2 because theta 1 is 0. ओमेगा की जगह ये फंक्शन डालना पड़ेगा बेटा. So it will become 65 minus 10t minus 5t square by 2 integration dt. This will become a normal mathematics question. I will just solve it. आप बाद में values put कर देना, so you can get the values. Okay, I will be doing it. ये हो जाएगा थीटा 2, ये हो जाएगा 65t माइनस 10t स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 बाई 2 t क्यूब बाई 3. इसका वैल्यू 0 to 3. थीटा 2 will become this much radian. I hope you all have got the sum of variable angular acceleration. ठीक है ना बेटा? I'm going to start with a new concept now of angular impulse. Important है, सब लोग इधर ध्यान देना. इसको डिनोट करते हैं AI बार से. सबसे पहले हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं लीनियर इम्पल्स के बारे में. लीनियर इम्पल्स ये बार, लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट टाइम. तो उसको हम लोग लिख सकते थे एवरेज फोर्स
इंटू टाइम डी, याद है ना, फॉर अ शॉर्ट टाइम तो हम लोग डी टी भी लिख सकते हैं इसको, याद है। अगर फोर्स वेरिएबल था तो हमने क्या लिखा, और थर्ड क्या रहेगा, एरिया अंडर एफ टी कर्व विल बिकम जे। क्लियर है, ये चीज हमने पढ़ी थी, बोलो। अच्छा, इसको मैं थोड़ा और मॉडिफाई करता हूँ। कैन आई राइट दिस एज, दिस इक्वेशन को लेते हैं, जे बार विल बिकम एवरेज फोर्स, एवरेज फोर्स को लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम, याद है ना, ये इनटू टाइम। तो ये dt dt कैंसिल हो जाएगा, सो कि जे बार इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम p फाइनल बार माइनस p इनिशियल बार। बोलिए। अच्छा, क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे रीशफल कर सकता हूँ, क्या इसे इनिशियल मोमेंटम प्लस माइनस जे इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, प्लस माइनस जे मतलब जे उसके डायरेक्शन में भी हो सकता है, जे उल्टे डायरेक्शन में भी हो सकता है। दिस सम्स विल बी डूइंग लेटर इन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यस और नो सर। ये जे बार का मतलब क्या हो सकता है, प्लस भी जे हो सकता है या तो माइनस जे भी हो सकता है। तो आई एम नॉट पुटिंग बार, आई एम राइटिंग प्लस माइनस। अगर सेम डायरेक्शन में हुआ पी इनिशियली तो प्लस लिखना, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो माइनस लिखना है, यस और नो सर। अब हम लोग यही चीज पढ़ते हैं, जब बॉडी घूम रही है तो वर्ड आएगा एंगुलर इंपल्स। तो यहां पर हम लोग एनालॉजी बनाते हैं, कहना इसे एंगुलर इंपल्स बार, एवरेज फोर्स की जगह आ जाएगा एवरेज टॉर्क dt, और अगर ये वेरिएबल हुआ तो एंगुलर इंपल्स विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क डॉट dt, और इट को एंगुलर इंपल्स को ऐसे भी लिख सकते थे दैट इट इज एरिया अंडर टाउ टी ग्राफ। सब इंपॉर्टेंट है। कैन आई से एंगुलर इंपल्स इज टॉर्क, टॉर्क बेटा इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे फोर्स वाज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, वैसे टॉर्क इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इनटू टाइम। ये उड़ गया, ये उड़ गया, तो क्या हो गया, एंगुलर इंपल्स विल बिकम व्हाट, change in angular momentum, that is L final bar minus L initial bar, yes or no? So can I write this as L initial bar plus minus angular impulse is L final bar? बोलो। अच्छा, ये और एक फॉर्मेट में लिख सकते हैं हम लोग, सब लोग इसको रिवाइज करके लिखेंगे हम। ओके, इट इज गिवन ऑन डीसी पांडे पेज नंबर 138। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बीच में जो रोलिंग का कॉन्सेप्ट है आई विल बी डूइंग नेक्स्ट टाइम। अच्छा, इसको और एक फॉर्मेट में भी लिख सकता हूं, कहना इसे एंगुलर इंपल्स टॉर्क, टॉर्क इज बच्चा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू dt। अरे यस और नो, देखो यार, टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो एंगुलर इंपल्स बार। अच्छा, व्हाट इज f डॉट dt, j बार, f और dt को साथ में मिला लो तो ये हो जाएगा j बार इनटू r परपेंडिकुलर, यस और नो। तो एंगुलर इंपल्स का एक फॉर्मूला हो गया j इनटू r परपेंडिकुलर, यस और नो। बट एंगुलर इंपल्स का दूसरा फॉर्मूला क्या, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो कैन आई से dl बार, दैट इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, को लिख सकते हैं ये, which could also be written as L final bar minus L initial bar is equal to j into r perpendicular। बोलो भाई, yes or no। तो ये सब चीजें ध्यान रखना। ओके, एंगुलर इंपल्स इज j into r perpendicular, चाहिए तो एक बार लिख लो। ओके, सो हमको दो चीजें यहां से मिली जो हमने डिस्कस करना है फिर से। What was J? Change in linear momentum. That is P final bar minus P initial bar. Suppose P initial bar 0 है, तो ये हो जाएगा P final bar. What is P final bar? Can I write MV? Is J bar? So what will be V? अच्छा, इसका वेक्टर फॉर्म निकाल देंगे तो J will become equal to MV. So V will become equal to what बच्चा? J by M. बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमको न्यूमेरिकल्स में काम लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, इसी के बेसिस पर हमने देखा था एंगुलर इंपल्स वाज चेंज इन
angular momentum. Angular impulse was L final minus L initial. Angular impulse was L final is I omega. L initial suppose मानते हैं 0 हो गया, बट एंगुलर इम्पल्स हमने और एक चीज निकाली थी, इट इज J into R perpendicular इज I ओमेगा, अभी हमने पढ़ा था. सो ओमेगा क्या हो जाएगा, J into R perpendicular by I. ये दोनों ब्यूटीफुल रिजल्ट्स हमको मिले जो हम लोग इनके न्यूमेरिकल्स के बेसिस पर काम करेंगे. तो V will become equal to J by M and omega will become equal to J perpendicular, J into R perpendicular by I. Please remember this. We are going to start numericals on the basis of this. कौन से दो फॉर्मूलाज हमने पढ़े, V is J by M, omega is J into R perpendicular by I. Yes or no? Introductory exercise 12.11. A cylinder is rolling down on a rough inclined plane. Its angular momentum over the point remains constant, over the point of contact remains constant. Is it constant or not? Is the statement true or false? तो एक cylinder नीचे जा रहा है. I know the force acting at the center is mg sin theta. Friction is acting upward from the point of contact. Torque about the bottommost point will be force into perpendicular distance. What is the force? mg sin theta. Perpendicular distances are, friction का torque 0 हो गया because it acting at the point of contact. और हमको और एक फार्मूला मालूम है, change in angular momentum is angular impulse and angular impulse is torque into time. अभी सब पढ़ा, torque is mg sin theta into r into time is t. So can I say final angular momentum is a function of time t? तो अगर ये फंक्शन ऑफ टाइम टी है तो जैसे वो नीचे आते जा रहा है, टाइम टी इज गोना चेंज, एंड इफ टाइम टी इज गोना चेंज, एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो गोना चेंज. सो कैन आई से एंगुलर मोमेंटम एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज इट कांस्टेंट? नो, इट इज नॉट कांस्टेंट. ओके, और आई कैन से इट इज नॉट कांस्टेंट. क्यों? एंगुलर मोमेंटम इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी. करेंगे बहुत सारे. Next question. A solid sphere and a hollow sphere of the same mass and the same radius are hit by a cube at height h. At height h, they are hit by a cube. Q यहाँ से इसको हिट करेगा. कौन है ये? एक solid sphere है. सिमिलरली यहां पर कौन है? यहां पर एक हॉलो स्फीयर है. दिस इज अ हॉलो स्फीयर. करेक्ट है. करेक्ट. किसका लीनियर वेलोसिटी ज्यादा है? अच्छा, v का फॉर्मूला क्या था? J by M. J यहाँ से लग रहा है, इम्पल्स यहाँ से लग रहा है, तो J तो कांस्टेंट है, दोनों का J सेम है. मास, अच्छा, they are telling you that solid sphere and hollow sphere are the same mass. So अगर J कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, तो V is also कांस्टेंट. V चेंज होने वाला नहीं है. So can I say the linear velocity acquired by them, the velocity of the center of mass by him and the velocity of center of mass by him is going to remain the same. तो दोनों का v सेम पकड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास दोनों का सेम रहेगा बिकॉज j दोनों का सेम है, मास दोनों का सेम है. सो दिस वी हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट पार्ट. एंगुलर वेलोसिटी किसका ज्यादा रहेगा? ओमेगा का फॉर्मूला क्या है? ओमेगा का फॉर्मूला वाज j into r perpendicular by I. j r perpendicular देख सकते हो, j into h दोनों का सेम है. कैन आई से एवरीथिंग दिस इज कांस्टेंट, एवरीथिंग विल बी इनवर्स टू I. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? सॉलिड स्फीयर is 2/5 mr square and इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया is 2/3 mr square. तो कैन आई से ओमेगा विल बी इनवर्स टू I. तो जिसका I बड़ा उसका ओमेगा छोटा. इसका I कितना रहेगा? 0.4 एंड इसका 0.6.
तो इसका अगर आई बड़ा है तो इसका ओमेगा विल बिकम लेस, ओमेगा ऐसे जाएगा इसका, बट इसका ओमेगा कम रहेगा और इसका ओमेगा ज्यादा रहेगा। आई एम अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग? किसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगा। ओके सर, नाउ थर्ड कॉन्सेप्ट, ओके, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। Can I write this as is L square by 2I? But angular momentum is always constant. Angular momentum is constant above the point of contact. Angular law of conservation of angular momentum पता है ना? If no net external torque acts on the body, external torque नहीं है, this is an internal torque like bullet and gun. तो it will be inverse to I. ये constant है तो kinetic energy is inverse to I. तो again जिसका I बड़ा उसका rotational kinetic energy will become less. So this is how we do the sums based on angular impulse. Thank you.